السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمی۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائن۔ SIR مہم میں تیزی، چیف الیکٹورل آفیسر کی فوری فارم جمع کروانے کی اپیل، BLOs کو گھر گھر رہنمائی کی ہدایات، اہل ووٹر سے بروقت تعاون کی درخواست۔ نمبریشن فارم جمع کر کے رسید ضرور لیں، بعد کی کارروائی BLO کی ذمہ داری۔ اسد الدین اویسی کی ووٹروں کو ہدایت، 20 جولائی تک ہی مکمل فارم جمع کرانے کا دیا مشورہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے طلبہ میں تقسیم کیے تعلیمی کٹس، تلنگانہ میں کم بارش پر بھی کیا اظہار تشویش۔ 26 جولائی کو عیدگاہ ہلالی میں نماز استسقاء کا اعلان، عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ BSP قائد RS پروین کمار کا کانگریس پر سنگین الزام، شہباد پوکسو کیس کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ، خواتین کے تحفظ پر سوال، وزیر اعلیٰ کے ووٹر اندراج پر بھی اعتراض۔ ایک اور رشوت خور عہدیدار ہوا بے نقاب، HMDA چیف انجینئر پر ACB کا بڑا کریک ڈاؤن، 11 مقامات پر چھاپے، کروڑوں کے اثاثے ضبط، آمدنی سے زائد جائیداد کے الزام میں عدالتی تحویل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے ریاست بھر کے تمام اہل ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے تحت اپنی انومریشن فارم جمع کروانے میں کسی قسم کی تاخیر نہ کریں، کیونکہ مکمل شدہ فارم موصول ہونے کے بعد ہی ووٹر کی تفصیلات 2026 کی ابتدائی ووٹر فہرست ڈرافٹ الیکٹورل رول میں شامل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ فارم کو مکمل طور پر پر کر کے جلد از جلد متعلقہ بوتھ لیول آفیسر BLO کے حوالے کیا جائے یا الیکشن کمیشن کے آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کروائی جائے، تاکہ آخری لمحات میں رش میں تکنیکی دشواریوں سے بچا جا سکے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے واضح کیا کہ انومریشن فارم کی بروقت جمع آوری ووٹر کی معلومات کی تصدیق اور انتخابی فہرست میں درست اندراج کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے تمام ضلعی انتخابی افسران، BLOs اور متعلقہ عملے کو بھی ہدایت دی کہ عوام کو ہر ممکن رہنمائی فراہم کریں اور فارموں کی وصولی و ڈیجیٹلائزیشن کا عمل مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں، تاکہ شفاف، جامع اور قابل اعتماد ووٹر فہرست کو تیاری یقینی بنائی جا سکے۔ ریاست بھر میں SIR کا عمل جاری ہے اور ریاست بھر کے عوام اپنے اپنے نمبریشن فارمز کی تکمیل کرتے ہوئے انہی BLOs کو پیش کر رہے ہیں اور کچھ افراد کی جانب سے آن لائن فارمز داخل کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں PRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے اپنی اہلیہ شریمتی شائلما اور فرزند ہیمانشو کے ساتھ SIR کے عمل میں حصہ لیا اور اپنے نمبریشن فارمز کی خانہ پوری کرتے ہوئے انہیں BLO کے حوالے کی۔ KT راما راؤ نے اپنے مکان پر ووٹر نمبریشن فارم کی اپنی اہلیہ شریمتی اور فرزند ہیمانشو کے ساتھ خانہ پوری کی، ان کا تفصیلی جائزہ لیا اور پھر BLO کو یہ فارم حوالے کیے۔ KTR نے شریک حیات اور فرزند SIR کے عمل کے مطابق اپنی تفصیلات کا فارمز پر اندراج کیا اور فارم کی باقاعدگی کے مطابق خانہ پوری کی۔ واضح ہے کہ KTR نے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے BRS کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نمبریشن فارمز کی خانہ پوری کرنے اور ووٹوں کی تحفظ کے سلسلے میں عوام کی ہر ممکن مدد کرے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے سلسلے میں عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ نمبریشن فارم جمع کرانے کے لیے آخری تاریخ 24 جولائی کا انتظار نہ کریں، بلکہ 20 جولائی تک ہی اپنے مکمل شدہ فارم متعلقہ بوتھ لیول آفیسر BLO کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم جمع کروانے کے بعد ووٹر لازمی طور پر رسید یا وصولی کا ثبوت حاصل کریں، کیونکہ اس کے بعد فارم کی جانچ، ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر کارروائی انتخابی حکام کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ووٹر کی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ شہری اپنی ذمہ داری بروقت پوری کریں اور بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 31 جولائی 2026 کو ابتدائی ووٹر فہرست ڈرافٹ الیکٹورل رول جاری کی جائیں گی، جس کے بعد ہر ووٹر اپنے نام اور تفصیلات کی جانچ کر سکتا ہے اور اگر کسی قسم کی غلطی یا کمی ہو تو الیکشن کمیشن کے ضابطوں کے مطابق اس کی اصلاح کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ SIR چل رہا ہے اور SIR 24 جولائی کو تلنگانہ میں اس کا اختتام ہوگا، تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے جن کو SIR فارم مل چکا ہے وہ 20 جولائی تک
अपना पूरा फॉर्म BLO के हवाले करें। हरगिज ये मत समझिए कि 24 जुलाई तक टाइम है। 20 जुलाई के दिन रात में चाहे कितनी देर हो, आप मजलिस के हेल्प डेस्क सेंटर से राब्ता करके अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO को 20 जुलाई तक हवाले करिए। दूसरी बात उसमें यह है कि जिस किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में आ गया या फिर उनकी मैपिंग उनके माँ बाप से, उनके दादा दादी, नाना नानी से हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप उस फॉर्म पे साइन करके आप अपने नई फोटो लगाकर BLO के हवाले करिए। 20 जुलाई के दिन आपको ये करना है। दूसरी बात यह है कि जिसको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है मगर उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड अगर है तो लिखिए, मोबाइल नंबर, अपने वालिद वालदा का नाम या फिर अपने शौहर या बीवी का नाम, एपिक कार्ड है उसको आप है तो लिख दीजिए और साइन करके आप वो भी BLO को 20 जुलाई तक हवाले करिए। ये मत समझिए कि अरे भाई उसमें मैं डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हूं, ये नहीं कर रहा हूं। पहली जब ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको नोटिस मिलेगी और 1 अगस्त से आपको उसका क्लैरिफिकेशन रिप्लाई देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप BLO को 20 जुलाई तक ये तमाम तफसीलात जो आपके पास दस्तयाब हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड अगर है, मोबाइल नंबर, वालिद वालदा, बीवी या शौहर का नाम, एपिक कार्ड, वो आप 20 जुलाई तक BLO को दे देना और एक्नॉलेजमेंट उसको ले लेना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा में सालारे मिल्लत एजुकेशनल किट्स तकसीम किए। मुनाक़दा तकरीर से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुस्लिम बच्चियों को अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मिल करनी चाहिए क्योंकि तालीम ही इनके रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि मजलिस चैरिटेबल्स एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट के तहत गुज़िश्ता 21 बरसों से ये तालीमी मुहिम कामयाबी के साथ जारी रखे हुए हैं और इस साल 11,000 से ज़्यादा तलबा को स्कूल बैग, नोटबुक्स, गाइड बुक्स और दीगर तालीमी सामान पर मुश्तमिल एजुकेशनल किट्स फराहम की जा रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुखिर हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हैदराबाद के तकरीबन 10 असम्बली हलकों में मौजूद सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के जमात शशुम ता दहुम के तलबा इस स्कीम से मुस्तफिद हो रहे हैं। उन्होंने बिलखुसूस वालिदैन और तालिबात से अपील की है कि वह तालीम को हर हाल में जारी रखें क्योंकि एक तालीम याफ्ता बेटी न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। जहाँ जहाँ हुकूमत के उर्दू मीडियम स्कूल्स है वहाँ पर ये स्कीम दिया जाता है, एजुकेशन किट दिया जाता है जिसमें एक बैग होता है, लॉन्ग बुक्स होती हैं और 6ठी जमात से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को ये एजुकेशन किट दिया जाता है। गाइड सेट्स दिए जाते हैं 6ठी जमात से 9वीं जमात और 10वीं जमात SSC के इम्तिहान में जो तलबा और तालिबात लिखते हैं उनको इम्तिहान की फ़ीस भी दी जाती है और 10वीं जमात के इम्तिहान से 2 महीने पहले उनको सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर दिया जाता है। तो मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 21 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2,07,500 तलबा और तालिबात को ये एजुकेशन किट दिया गया है। 41,086 बच्चों को ये एग्जामिनेशन फ़ीस दी गई है और साथ ही साथ जब SSC में अगर कोई टॉप करता है उनका GPA हमने रखा है कितना 7.5 अगर GPA होता है तो उनको कैश अवार्ड 5,000 रुपये दिया जाता है और फिर उस स्कूल में जिसका 100% पास रेट होता है उस स्कूल के ज़िम्मेदारों को 10,000 रुपये नक़द इनाम दिया जाता है। तो SSC टॉपर्स को अब तक 3,207 तलबा और तालिबात को दिया गया और ऑल इन वन अब तक 21 साल में 1,30,000 तकसीम किए गए हैं। तो अक्टूबर 2005 से जुलाई 26 तक एक कसीर रकम
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से इसमें खर्च की गई है और जिस स्कीम से जो फ़ायदा उठाए बेनिफिट हुआ है इसमें तलबा और तालिबात को अगर आप उनका टोटल दिया जाए तो वो 3,81,793 तलबा और तालिबात ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जुलाई 26 में 11,100 तलबा और तालिबात को एजुकेशन किट दिया जाएगा जिसकी रकमी लागत 60,07,500 रुपये है। दारुसलाम में मुनक़दा सालाल मिल्लत एजुकेशनल किट्स की तक़सीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में जारी कम बारिश की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशें मामूल से कम हो रही हैं और कई अजला में बारिश के शदीद फुक़दान का सामना कर रहे हैं जिससे किसानों और अवाम में तशवीश पाई जा रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने ऐलान किया कि 26 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 7 बजे से 9 बजे मासब टैंक की ईदगाह हिलाली में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने हैदराबाद की अवाम से बड़ी तादाद में इज्तिमाई दुआ में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि अल्लाह ताला से बारान रहमत, खुश्क साली के खात्मे, फसलों की बेहतरी और रियासत में खैर व बरकत के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। उन्होंने मजलिस के तमाम ज़िले अमीरों को भी हिदायत दी है कि वो अपने अपने अजला में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम करें ताकि पूरी रियासत में इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से बारिश और रहमत की दुआ की जा सके। उन्होंने कहा कि आजमाइश के ऐसे मौके पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, दुआ और इज्तिमाई इबादत इस्लामी तालीमात का अहम हिस्सा है और इन्हें यकीन है कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बारान रहमत नाजिल फरमाएंगे। पूरे तेलंगाना में ये बात सामने आ रही कि बारिश नहीं हो रही। एक्सपर्ट्स यानी जो वेदर एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एल नीनो इफेक्ट हो रहा है। तो इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि 26 जुलाई के दिन इतवार का दिन है, सुबह 9:30 बजे ईदगाह हिलाली में बारिश के लिए एक नमाज इस्तिग़्सा होती है। माने तमाम लोग जमा होते, इस ईद की नमाज में जमा होते, सब लोग जमा होते हैं और इमाम साहब का खुतबा होता है, फिर उसकी नमाज होती 2 रकात। उसका एक तरीक़ेकार है, कितने तकबीरात पहली रकात में, दूसरी रकात में। फिर उसके बाद इमाम साहब जो है अपने कपड़ों को पलटा कर पहनते, माने जो जुब्बा है पलटा कर पहनते और हाथ नीचे रखकर दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह तू बारिश को नाजिल फरमा दे, क्योंकि बारिश ज़रूरी है और बारिश की कमी से खुदा ना खास अगर बारिश कम हुई तो इससे किसानों को नुकसान होगा, लोगों को पीने के पानी की तकलीफ होगी। बहरहाल आप जानते हैं कि पूरी कायनात अगर पानी नहीं है तो जिंदा ही नहीं रह सकते हम लोग। तो इस सिलसिले में 26 जुलाई को मासाब टैंक में ईदगाह हिलाली में सुबह 9:30 बजे नमाज इस्तिग़्सा का एहतमाम किया जा रहा है। उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम रहेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप उसमें शिरकत करिए और मैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अज़ला के ज़िम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूँ कि वो अपने अपने मुकामात पर उलमाए कराम से मशवरा करके आप वहाँ पर भी नमाज इस्तिग़्सा का एहतमाम करिए। हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर भीख मांग कर दुआ करेंगे कि परवरदिगार बारिश को नाजिल करने वाले आप हैं, बादलों को बनाने वाले आप हैं, ज़मीन को सैराब करने वाले आप हैं। अल्लाह से हम दुआ करते रहें और करते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफा बख्श बारिश हमको अता करे। बरसों पहले मुझे याद है कि जब शायद तेलंगाना में फूड सेफ्टी महकमा और ड्रग्स कंट्रोल इंतजामिया को एक दूसरे में जम करने के इक़दामात का जायजा लिया गया। रियासती वज़ीर सेहत मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने सेक्रेटेरिएट में दोनों महकमा जात के आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि दोनों महकमा जात के कामों में एक दूसरे के साथ तालमेल को यकीनी बनाने के लिए इनके इंतजाम की तजवीज़ का जायजा लिया जाना चाहिए। इजलास में महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस क्रिस्टेना और फूड सेफ्टी कमिश्नर मिस संगीता सत्यनारायणा, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल मिस्टर अविनाश मोहंती, आरोग्यश्री के CEO मिस्टर हनुमंतु और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। मुख्तलिफ रियासत में दोनों महकमा जात की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए
रवाना किए गए अहदेदारों ने अपनी रिपोर्ट से वजीर मौसूफ को वाकिफ करवाया। मिस्टर दामोदराज नरसिम्हा ने दोनों महकमा जात के मौसर काम काज की सताइश की और अहदेदारों से कहा कि वो कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के सिलसिले में मौसर इक़दामात को यकीनी बनाएं। शाहबाद पॉक्सो केस के मामले पर कायद आर.एस. प्रवीण कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस केस के मरकजी मुल्जिम राजकुमार को जमानत मिलने में कांग्रेस लीगल सेल से वाबस्ता एक वकील के पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने का किरदार रहा और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। आर.एस. प्रवीण कुमार ने हुकूमत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए जाने वाले अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जिम के खिलाफ बर वक्त सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने एक और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम मुबैना तौर पर 2 मुख्तलिफ मुकामात की वोटर फहरिस्तों में मौजूद है, जो अगर दुरुस्त साबित हो तो इंतखाबी क़वानीन के तहत जुर्म बन सकता है। आर.एस. प्रवीण कुमार ने इन तमाम मामलात की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। ఆయన వస్తాడు, ఇంట్లో కూర్చుంటాడు, ఎగ్జామ్ రాస్తాడు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు. నిజానికి చెప్తున్నాండి, హైకోర్టులో కూడా వీళ్ళు ఒక ప్రైవేట్ లాయర్ను పెట్టుకోకపోయి ఉండుంటే ఈ కేసు ఎప్పుడో వీగిపోయేది. ఇప్పటికి కూడా ఆమె ఏడుస్తూ ఉన్నది బాధితురాలు. సార్, నేను ఎఫ్ఐఆర్లో కేంద్ర మంత్రి నన్ను బెదిరించిండని చెప్పిన, ఎఫ్ఐఆర్లో సంగప్ప అనే వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం చేసినని చెప్పిన, మరి వీళ్ళని నోటీసులు పిలిపించి అడగాలి కదా సార్, ఎందుకు అడుగుతలేరని అడుగుతా ఉంది. మరి ఇదే అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఎవరు? పీపీ అడగాలి కదా. మరి పీపీలే చేతులు ఎత్తేస్తే ఎట్లా? ఇందులో భిక్షపతి గౌడ్ గారు ఆ సిఐ కాంతారెడ్డిని, ఆ ఎస్ఐ రమేష్ను పిలిపించారు. బాబు, వాడు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అంటున్నాడు, అర్జెంటుగా మనం బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేపిద్దామని అడగాలి కదా. లేకపోతే తర్వాత బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాడు రోజు కత్తులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు, గంజాయి తాగుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు, సంపుతాన్ని తిరుగుతుంటున్నాడు, ఇవన్నీ చేస్తూ అంటున్నాడు. కాబట్టి అర్జెంటుగా పోయి బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేపియండి, మీరు ఒక లెటర్ తీసుకురండి, నేను ఇమ్మీడియట్గా మేజిస్ట్రేట్ గారితో కలుస్తాను చెప్పాలిగా. ఇవేమీ జరగలేదు. అంటే ఏంటి అసలు? మహిళలు వాళ్ళ ప్రాణాలంటే మీకు ఏమైనా లెక్క ఉన్నదా? ఓదార్చడానికి పోతే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు, స్పెషల్ పార్టీలు పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తారు. మరి అదే అరెస్టు వాళ్ళని చేయొచ్చు కదా, నిందితులను. సో పోక్సో విషయంలో చాలా క్లియర్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నది. వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఎంతటి వాళ్ళైనా బెయిల్ ఇవ్వకూడదు, బెయిల్ రద్దు చేయాలి. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, వాళ్ళ బాడీలకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, వాళ్ళని ఎవరేం చేస్తున్నారో తెలియదు, వాళ్ళు చెప్పుకున్న వినే నాదుడు ఎవరు ఉండరు. మరి ఇవంతా చూడాల్సింది ఎవరు? హోంమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి ఒక్కరే ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారే చూడాలి కదా. లేకపోతే అమ్మ నా వల్ల అయితే లేదు, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నా చెప్పి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి, మీరే చేయండి అని చెప్పాలి. అది లేదు, ఇది లేదు. ఒక డీజీపీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడు, ఒక హోమ్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడు, మరి ఎవరు ఇస్తారు? సో ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా నిందితుల పక్షానే ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో లీగల్ సెల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న స్పెషల్ పీపీ ఆయన చేయబట్టే ఇవాళ ఆ నిందితుడు రాజ్కుమార్ అంటోడు అరెస్ట్ కాలేదు, వానికి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ దొరికింది, వాడు వచ్చి 6 మందిని చంపేసి వాడు కూడా చచ్చిపోయాడు. ఇది వాస్తవం. कमिश्नर पुलिस मिस्टर वीसी सजनान ने शहर में बोनाल त्योहार के मौके पर वसई और मौसर पुलिस बंदोबस्त की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस मिस्टर सजनान ने आज सेंट्रल कमांड काउंसिल में एक इजलास मुनक्कद करते हुए बोनाल त्योहार के लिए इंतजामात का जायजा लिया। शहर में बोनाल त्योहार का गोलकुंडा से 16 जुलाई से आगाज होने वाला है। कहा गया है कि बोनाल त्योहार 17 अगस्त तक जारी रहेगा। कमिश्नर पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोलकुंडा, बलकमपेट, सिकंदराबाद, अजेनी, महंकाली और लाल दरवाजा समेत मुख्तलिफ मंदिरों में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया और फील्ड सतह पर हिफाजत के इक़दामात से मुताल्लिक़ सीनियर हुक्काम से इस्तिफ़सार किया। उन्होंने कहा कि रियासती उज़रा पुन्नम प्रभाकर और दूसरों ने भी एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़द करते हुए मौसर इंतजामात की हिदायत दी। इन अहकामात पर मुकम्मल अमलवारी की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि त्योहार के दौरान अवाम को किसी तरह के मसाइल का सामना करना ना पड़े, इसीलिए मौसर इंतजामात किए जाने चाहिए। उन्होंने ख़वातीन की हिफाजत और सलामती के लिए भी ख़ुसूसी इक़दामात करने का मशवरा दिया। हैदराबाद में केबीआर पार्क फ्लाईओवर मंसूबा और हालिया 1 वे ट्रैफिक ट्रायल का जायजा लेने के लिए जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनान ने सीनियर बल्दी व ट्रैफिक हुक्काम के हमरा हाल सुबह इलाके का दौरा किया। इस मौके पर फ्लाईओवर के डिज़ाइन, ट्रैफिक की रवानी, अवामी सहूलियात की मुंतकिली, रोड सेफ्टी और मंसूबे पर अमल दरामद से मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। हुक्काम ने 1 वे ट्रायल के दौरान पेश आने वाले मसाइल
और ट्रैफिक के बहाव का भी मुआयना किया। जीएचएमसी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि तमाम ज़ेरे इल्तिवाम मंजूरियों को जल्द मुकम्मल करते हुए बाहमी तालमेल के साथ मंसूबात पर तेजी से काम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तामीराती सरगर्मियों के दौरान शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े, जबकि ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। तेलंगाना में रिश्वतखोर और बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ महकमा अंसदाद रिश्वत सतानी की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए आमदनी से ज़ायद आसासजात रखने के इल्ज़ाम में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के चीफ इंजीनियर बी रविंदर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए इनकी रिहाइशगाह, दफ्तर, रिश्तेदारों, करीबी साथियों और मुबैना बेनामी अफराद से वाबस्ता 11 मुकामात पर बेक वक्त छापे मारे। एसीबी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 प्लॉट्स, 4 रिहायशी फ्लैट, 4 एकड़ ज़राई ज़मीन, एक ज़ेरे तामीर विला, एक G+4 इमारत, करीब 14.5 किलो सोना, 12.5 किलो चांदी, 45 लाख रुपये से ज़ायद बैंक बैलेंस, नकद रकम, कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। दस्तावेजी मालियत के मुताबिक जब्त शुदा आसासों की कीमत 9 करोड़ 24 लाख रुपये से ज़ायद है, जबकि इनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एसीबी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बी रविंदरा ने दौरान मुलाजिमत बदउनवानी और गैर कानूनी ज़राए से ये आसासे जमा किए। मुलजिम को अदालत में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। रियासत में जारी महकमा जात की जानिब से किराए पर हासिल की गई गाड़ियों के किराए की अदायगी का मुतालबा करते हुए गाड़ी मालिकीन की जानिब से आज सेक्रेटेरिएट में मीडिया पॉइंट पर एहतजाज किया गया। गाड़ी मालिकीन का कहना है कि इन्हें गुज़िश्ता 1.5 साल से गाड़ियों का किराया हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हुकूमत से गाड़ी मालिकान को जुमला 170 करोड़ रुपये के बकायाजात हैं, जिनकी अदायगी की जानी चाहिए। गाड़ी मालिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गाड़ियों का जो माहाना किराया 34,000 रुपये है वो भी नाकाफ़ी है और इसे बढ़ाकर जुमला 55,000 रुपये माहाना किया जाना चाहिए। गाड़ी मालिकीन ने बताया कि इन्हें हुकूमत से बिल्स की अदम वसूली के नतीजे में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्हें डीजल हासिल करने, ड्राइवर की तनख्वाह अदा करने और गाड़ियों की माहाना किस्त की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंश्योरेंस भी अदा करने में मसाइल हो रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को फौरी तौर पर गाड़ियों के बकायाजात अदा करने चाहिए। बिल्स के तवील वक्त से अदम अदायगी के मसाइल में इजाफा कर रही है। हाइड्रा की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए मालियती जुमला 4,400 गज सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया और नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त कर दिया गया। कहा गया है कि मलकानगिरी जिले के मेडीपल्ली मंडल जंकी चरला गांव में इस अराजी पर कब्जा कर लिया गया था। जयापर्दा कॉलोनी में पार्क के लिए मुख्तस 1200 गज अराजी, मंदिरों के लिए 400 गज अराजी, स्कूल और लाइब्रेरी के लिए मुख्तस 800 गज अराजी और पानी के टैंक के लिए 800 गज अराजी मुख्तस की गई थी, जिस पर नाजायज कब्जे कर लिए गए थे। मुकामी फर्द ने शॉपिंग मॉल्स की तामीर के लिए मुख्तस अराजी को मकानात में तब्दील कर दिया था। मुकामी अफराद ने इन तजावीज़ात के खिलाफ हाइड्रा के प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुताल्लिका हुकाम के साथ हाइड्रा अहदेदारों ने दौरा करते हुए हक़ाइक़ का जायजा लिया था। शिकायत दुरुस्त साबित होने पर आज यहाँ कार्रवाई करते हुए नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त कर दिया गया और इस कीमती अराजी के अतराफ फेंसिंग भी कर दी गई। हाइड्रा ने यहाँ अराजी के सरकारी अराजी होने के बोर्ड्स भी लगा दिए हैं। కష్టపడి ఇల్లు కొనుక్కున్నాం. ఇల్లు కొనుక్కున్నాక ఏ చిన్న కార్యం చేయాలన్నా కూడా వేలు పెట్టి ఒక ఫంక్షన్ పోలేం కదా. ఎక్కడ చేసుకుంటాం. ఇంటి దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నది. ఫ్యూచర్ దేనికైనా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పేసి అని నేను ఇక్కడ ఇల్లు కొన్నా. నాలాగా 100 మంది కొన్నారు. ఈ 100 మందికి ఏమైపోయిందంటే ఇక్కడ ఉంది కదా అసోసియేషన్ కాపాడుతుంది కదా అనుకున్నాం. కానీ అసోసియేషన్ వెళ్ళి కబ్జా చేసింది అక్కడ. అది అయిపోయింది. దాని పరంగా వెళ్ళి సార్ని కలిసినాము. సార్ మాకు మంచి న్యాయం చేసిండు. ఇక్కడ నా ఒక్కరి కాదు 100 కుటుంబాలకు న్యాయం చేసినాడు ఆయన సార్. చాలా థ్యాంక్స్ రంగనాథ్ సార్. నా పేరు గురియా నరసింహకుర్మ. ఈరోజు జయప్రద కాలనీలో హైదరాబాద్ వచ్చి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటికీ ఫినిషింగ్ వేయడం అనేది చాలా సంతోషకరం. కొన్ని భూములు కబ్జాకై నిర్మాణాలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ అంతా అన్యక్రాంతానికి గురవుతుందని కాలనీ వాసులు హైడ్రాను ఆశ్రయించడం జరిగింది. ఆశ్రయించిన వారం రోజుల్లో హైడ్రా స్పందించి ఇవి నిజంగా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీసే, వీటిని పరిరక్షించాలన్న ఉద్దేశంతో
ఈరోజు సుమారు 100 మందితోని ఇక్కడికి విచ్చేసి సుమారు 5-6 వేల గజాల ల్యాండ్కు చుట్టూ ఫినిషింగ్ చేయడానికి హైడ్రా రావడం అనేది చాలా సంతోషం. ఇక్కడ నేను కూడా ఒక 20 ఇళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసి అమ్మడం జరిగింది. మా దగ్గర ఇల్లు కొనుక్కున్న కస్టమర్లు కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైడ్రా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ని కాపాడడంలో హైడ్రా సక్సెస్ అయిందని చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంకా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అన్ని పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ని కాపాడాలని హైడ్రా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ मुगिస్తున్నాను. हैदरा के रामंतापुर में वाक़े पेदा चेरू झील पर तजावुज़ात के खिलाफ हैदरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2180 मुरब्बा गज अराजी को वागजार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक झील का फुल टैंक लेवल रकबा तकरीबन 30 एकड़ है, जिसमें से 16 एकड़ पर तजावुज़ात कायम हो चुकी थी। कार्रवाई के दौरान FTL हदूद में ज़ेरे तामीर G+2 कमर्शियल इमारत, एक ऑटो गैरेज और मुतअद्दिद आर्जी ढांचों को मुनहदम कर दिया गया। हैदरा ने बताया कि आर्जी झोपड़ियों में रहने वाले मुस्तहिक खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की सिफारिश भी की गई, ताकि तजावुज़ात के खात्मे के साथ इनकी बाज़ आबादकारी भी मुमकिन हो सके। हुक्काम के मुताबिक हर बारिश के मौसम में झील भरने पर ये झोपड़ियाँ ज़ेराब आ जाती हैं, जिससे मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हैदरा का कहना है कि इस कार्रवाई से झील के असल रकबे की बहाली, सैलाबी पानी की नक्कासी में बेहतरी और मुस्तक़बिल में शहरी इलाकों को ज़ेराब आने से बचाने में मदद की जाए, जबकि 19 करोड़ रुपए की लागत से जारी झील की तरक्याती स्कीम को भी तक़वियत हासिल होगी। कमिश्नर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज कॉरपोरेशन के अलावा वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के साथ दुर्गम चेरू का दौरा किया और वहां उन्होंने सीवरेज मसाइल और गंदा पानी झील में दाखिल हो जाने के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि दुर्गम चेरू झील को साफ और शफाफ रखने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नालों के जरिए कचरे वगैरह के झील में दाखिल को रोकने के इक़दाम कल तक आगाज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा आइंदा पीर तक कचरा वगैरह के बहाव को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सीवरेज लाइन बंद हो गई हैं, इन्हें सड़कों की तामीर के वक्त बहाल किया जाना चाहिए, ताकि झील में गंदा पानी की आमद को रोका जा सके। उन्होंने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स महकमा को हिदायत दी है कि पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम को यकीनी बनाएं। कमिश्नर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि वो इन तमाम हिदायत पर अमलवारी का जायजा लेने आइंदा पीर को एक बार फिर दुर्गम चेरू का दौरा करें। हैदराबाद की चारमीनार जोन के DCP खारे किरण प्रभाकर IPS ने 15 जुलाई की अले सुबह ओल्ड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक रात के औकात में मुआयना करते हुए पुलिस की चौकसी का जायजा लिया। उन्होंने याकुतपुरा, रेन बाजार, संतोष नगर, रक्षापुरम, मोइन बाग और गंगानगर नाला इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग, गाड़ियों की चेकिंग, हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की बरकरारी और जुराइम की रोकथाम के लिए मज़ीद मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत दी। DCP ने वादे किया कि ओल्ड सिटी में अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए इस नवैयत के अचानक मुआयने और खुसूसी निगरानी का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। गाड़ी से उतरो। हैदराबाद के मारूफ फुटवेयर ब्रांड YT फुटवेयर अपनी कामयाबियों का सफर जारी रखते हुए शहर में अपनी दूसरी शाख का इफ्तिताह करने जा रहा है। मोगलपुरा में यासीन बुक हाउस के सामने वाक़ई अपनी पहली ब्रांच के जरिए मियारी फुटवेयर, जदीद डिज़ाइन और मुनासिब कीमतों के बायस अवाम में मकबूलियत हासिल करने के बाद अब इदारा रक्षापुरम मंदिर के बामुकाबिल
जमाल कॉलोनी हैदराबाद में नई ब्रांच का आगाज कर रहा है। इस इफ्तिताही तकरीब की खास बात ये होगी कि हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इंतजामिया ने शहर के अवाम, अपने सारिफीन और खैर ख्वाहों से तकरीब में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि नई ब्रांच के क़याम का मकसद मुख्तलिफ इलाकों के सारिफीन तक बेहतरीन मियार के फुटवेयर और मज़ीद बेहतर खिदमात पहुँचाना है, ताकि हर तबक़ाए फ़िक्र को मियारी मसनूआत मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो सकें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तला है, वाईटी फुटवेयर के प्रोप्राइटर हैं और हमारा एक और ब्रांच है, मेन ब्रांच जो कि चार मीनार पर लोकेटेड है। ये सेकंड ब्रांच हम लोग यहाँ पर ओपन करें रक्षापुरम टेंपल के अपोजिट, मोइनबाग रक्षापुरम। तमाम यंगस्टर्स जो कि बारकस, सलाला, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर, मोइनबाग, एलबी नगर, जितने भी अतराफ एरिया लगते हैं, तमाम यंगस्टर्स को बोलना चाह रहा हूँ, भाई वन स्टॉप डेस्टिनेशन है आप सब के लिए। यहाँ पर आपको टंस, नाइक, स्नीकर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स ले लो, कैजुअल ले लो, फॉर्मल ले लो, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। मेन के लिए ज़बरदस्त तरीके का कलेक्शन है अपने पास। हमारा स्टोर विजिट करिए। हम जाने जाते हैं क्वालिटी एंड रीज़नेबल प्राइजेस में। क्वालिटी हम रीज़नेबल प्राइजेस में प्रोवाइड करते हैं आप सब के लिए, आप सबकी खिदमत के लिए बैठे हैं। तो एक बार आप हमारा स्टोर विजिट करिए, यहाँ का रक्षापुरम टेंपल के सामने है। तो वैरायटी तो आप सभी को जानने के लिए, वैरायटी आप सभी को इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट होते रहेंगी। इंस्टाग्राम पर अपना पेज है वाईटी फुटवेयर के नाम से, आप लोग वहाँ पर सर्च कर सकते हो वाईटी फुटवेयर बोलकर। हमारी तमाम वैरायटी आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो विजिट करिए, आपका अपना स्टोर है वाईटी फुटवेयर एक्सेसरीज। यंगस्टर्स को सपोर्ट करिए बिजनेसेस में, ठीक है। इनॉग्रेशन के मौके पर हमारे पास फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है हर एक एंटायर स्टॉक के ऊपर। तो आप लोग विजिट करिए स्टोर, इंशाल्लाह सेटिस्फाई होकर, आप लोग प्राइजेस से सेटिस्फाई होकर लेके जाएंगे। इनॉग्रेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इनॉग्रेशन हुआ है। तमाम कॉर्पोरेटर्स, लीडर्स, एरिया प्रेसिडेंट, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। थैंक यू। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राज शीशा ने सोनाला मंडल के पीएम श्री ZP सेकेंडरी स्कूल में मुनाकदा आरोग्य पाठशाला प्रोग्राम से खिताब करते हुए तलबा में जोर दिया कि वो सोशल मीडिया, रील्स और दीगर गैर जरूरी मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करें और अपनी पूरी तवज्जो तालीम, खेल और शख्सियत साजी पर मरकूज करें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम के साथ तलबा की बेहतरी के लिए दोपहर के खाने के अलावा सुबह का नाश्ता भी फराहम किया जाएगा, ताकि बिलखुसूस तलबा में खून की कमी में काबू पाया जा सके। कलेक्टर ने जंक फूड से परहेज, नज़्म व ज़ब्त अपनाने और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर BR अम्बेडकर और SR शंकरन जैसे अजीम शख्सियात की ज़िंदगी से सबक लेने की तलकीन की। उन्होंने स्कूल में शिकायती संदूक, न्यूटरी गार्डन, लाइब्रेरी और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए जल्द फंड्स जारी करने का भी ऐलान किया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में मुसलसल कम बारिश और खुश्क साली जैसे हालात के पेश नज़र शहर के उलमा इकराम, हुफ्फाज और ईदगाह कमेटी की जानिब से 18, 19 और 20 जुलाई को ईदगाह मैदान में 3 रोज़ा नमाज़े इस्तिस्का का एहतमाम किया गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक हर रोज़ सुबह 7:15 इस्लाही व हिदायती बयान होगा, जिसके बाद 8 बजे नमाज इस्तिग़ासा अदा की जाएगी और इज्तिमाई दुआ में बाराने रहमत, मुल्क में खैर व बरकत और उम्मत मुसलिमा की भलाई के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी और मुफ्ती खलील क़ासमी ने ज़हीराबाद और अतराफ़ के मुसलमानों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा खुश्क साली के हालात में अल्लाह ताला से रुजू, तौबा और इज्तिमाई दुआ भी बेहतरीन रास्ता है। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान और दीगर मौजूद भी मौजूद थे। बारिश का मौसम शुरू होकर लेकिन अभी तक खातिर ख़्वाह बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। तो उसी सिलसिले में नमाज इस्तिस्का यानी बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। 18, 19, 20 हफ्ता इतवार पीर सुबह 8 बजे ठीक नमाज अदा की जाएगी और 7:15 से उलमा इकराम के बयानात भी होंगे, आप उसमें शिरकत फरमाएँ। और ये क्यों जो है बारिश रोकी जाती है, हदीसों में आता है कि ज़कात को रोकने से बारिश रोकी जाती है। अगर चरिंदे परिंदे ना होते तो एक ख़तरा भी जो है बारिश ना बरसती। तो इसलिए सब मुसलमान अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपने अपने मालों की ज़कात निकालेंगे। जो अब तक अधूरी है नहीं निकाले वो भी मुसम्मम इरादा करें।
और हमेशा के लिए इरादा करें कि इंशाअल्लाह ज़कात नहीं रोकेंगे, ताकि हम सबब ना बने बारिश को रोकने का। और दूसरा, नाप तोल में कमी ना करेंगे कि नाप तोल में डंडी मारने से जिसका जो हक़ है वो हक़ अदा ना करे तो उसकी वजह से भी बारिश रोकी जाती है। और तीसरा काम हमें इस्तग़फ़ार करना है कि अपने गुनाहों को जो है माफ़ी अल्लाह से चाहना। अगर हम अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहेंगे, अल्लाह ने खुद फरमाया वयरसिलुस्समा अलैकुम मिदरारा, कि तुम तौबा इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला जो है आसमान से पानी बरसाएंगे, बारिश नाजिल होगी। तो हर मुसलमान आज ही से तौबा इस्तग़फ़ार में लग जाए, रोज़ाना कम से कम एक 500 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े कि अल्लाह मेरे गुनाहों को देखकर मेरी वजह से दूसरी मखलूक को परेशान मत कर, मैं तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ, मुझसे जो भी गुनाह हुए तेरे सामने मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज ही से इस्तग़फ़ार का अहतमाम करें और खुशू खुजू के साथ तौबा का भी अहतमाम करें। और जितना हो सके पूरे जो है अपने अतराफ़ में इस बात को शेयर करें कि हफ़्ता इतवार पीर को बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी जा रही है। ठीक 8 बजे आप हज़रात शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात शिरकत फरमा कर दुआ के लिए इंशाअल्लाह हाथ उठाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। और नमाज़ पढ़ाने की जगह ईदगाह मुक़र्रर की गई है और ये मिन जानिब ईदगाह कमेटी और जमीउल उलमा फास की जानिब से इंतज़ाम किया जा रहा है। आप हज़रात जो है ज़रूर शिरकत फरमाएँ, ईदगाह मैदान ज़हीराबाद। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। SIR मुहिम में तेजी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की फौरी फॉर्म जमा करवाने की अपील, BLOs को घर घर रहनुमाई की हिदायत, अहल वोटर से बरवक्त ताउन की दरख्वास्त। नुमरेशन फॉर्म जमा करके रसीद जरूर लें, बाद की कार्रवाई BLO की जिम्मेदारी। असदुद्दीन ओवैसी की वोटरों को हिदायत, 20 जुलाई तक ही मुकम्मल फॉर्म जमा कराने का दिया मशवरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा में तकसीम किए तालीमी किट्स, तेलंगाना में कम बारिश पर भी किया इजहार तशवीश। 26 जुलाई को ईदगाह हिलाली में नमाज इस्तिस्का का ऐलान, अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। BSP कायद RS प्रवीण कुमार का कांग्रेस पर संगीन इल्जाम, शाहबाद पॉक्सो केस की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल, वज़ीर आला के वोटर इंदराज पर भी एतराज़। एक और रिश्वतखोर ओहदेदार हुआ बेनकाब, HMDA चीफ इंजीनियर पर ACB का बड़ा क्रैकडाउन, 11 मुकामात पर छापे, करोड़ों के असासे जब्त, आमदनी से ज़ायद जायदाद के इल्जाम में अदालती तहवील। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।